Hello students, in the last lecture we have learnt about confocal conicoids and discussed some articles based on confocal conicoids. In this lecture we will continue with the confocal conicoids. Next article is to prove that if a straight line touches two confocal conicoids, then the tangent planes at the point of contact are at राइट एंगल्स दैट इज अगर दो कॉन्फोकल कॉनिकॉइड्स हैं हमारे पास और एक स्ट्रेट लाइन उन दो कॉन्फोकल कॉनिकॉइड को टच कर रही है तो जिन पॉइंट पर वो टच कर रही है अगर उन पॉइंट्स पर हम टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे मींस राइट एंगल पर होंगे ये हमें शो करना है let the equation of two confocals be x square over a square minus lambda 1 plus y square over b square minus lambda 1 plus z square over c square minus lambda 1 equals to 1 and x square over a square minus lambda 2 plus y square over b square minus lambda 2 plus z square over c square minus lambda 2 equals to 1. We have considered the equation of two confocal conicoids. Let the straight line touches the conicoid 1 at point P whose coordinates are x1, y1, z1 and the straight line touches the confocal 2 at point Q whose coordinates are x2, y2, z2. हमने सपोज कर लिया स्ट्रेट लाइन जो इन कॉन्फोकल्स को टच कर रही है वो कॉन्फोकल 1 को P पॉइंट पर टच कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1, y1, z1 और कॉन्फोकल 2 को Q पॉइंट पर टच कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x2, y2, z2. हम कॉन्फोकल 1 पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एट पॉइंट x1, y1, z1 and that equation will be x1 over a square minus lambda 1 plus y1 over b square minus lambda 1 plus z1 over c square minus lambda 1 equals to 1. This is the equation of tangent plane at confocal 1 through the point x1, y1, z1. Now, the equation of tangent plane to the confocal 2 at point x2, y2, z2 is x2 over a square minus lambda 2 plus y2 over b square minus lambda 2 plus z2 over c square minus lambda 2 equals to 1. ये दो इक्वेशन हमने ले ली टेंजेंट प्लेन की जो हमने दो कॉन्फोकल्स पे ड्रॉ किए. फर्स्ट कॉन्फोकल पे हमने इस P पॉइंट से टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया. सेकंड कॉन्फोकल पे हमने इस Q पॉइंट से टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया और उसकी इक्वेशन हमने यहाँ 3 और 4 से रिप्रेजेंट कर दी, डिनोट कर दी. नाउ द टेंजेंट लाइन द लाइन PQ लाइज इन द टेंजेंट प्लेन. जो हमारी लाइन है PQ वो हमारी टेंजेंट प्लेन में लाई करेगी. इट मींस P पॉइंट भी टेंजेंट प्लेन में लाई करेगा और Q पॉइंट भी टेंजेंट प्लेन में लाई करेगा. तो P और Q पॉइंट हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. Now Q point lies on the tangent plane, so Q point satisfies the equation 3. Means अगर हम x y z को x2 y2 z2 से रिप्लेस कर दे तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगी. दैट इज x1 x2 over a square minus lambda 1 plus y1 y2 over b square minus lambda 1 plus z1 z2 over c square minus lambda 1 equals to 1. And x1 x2 over a square minus lambda 2 plus y1 y2 over b square minus lambda 2 plus z1 z2 over c square minus lambda 2 will also equals to 1. ये हमारा टेंजेंट प्लेन है. इस टेंजेंट प्लेन पे P पॉइंट भी लाई कर रहा है, Q पॉइंट भी लाई कर रहा है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1 z1 that will satisfy this equation, that is x1 x2 over a square minus lambda 2 plus y1 y2 over b square minus lambda 2 plus z1 z2 over c square minus lambda 2 equals to 1. Now we will solve this equation by subtracting equation 6 from 5. Subtract करेंगे, then we have x1 x2 into 1 by a square minus lambda 1 minus 1 by a square minus lambda 2 plus y1 y2 into 1 by b square minus lambda 1 minus 1 by b square minus lambda 2 plus z1 z2 into 1 by c square minus lambda 1 minus 1 by c square minus lambda 2 equals to
0. On simplifying it, we have, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप एलसीएम लेके. We have x1 x2 into lambda 1 minus lambda 2 over a square minus lambda 1 into a square minus lambda 2 plus y1 y2 into lambda 1 minus lambda 2 over b square minus lambda 1 into b square minus lambda 2 plus z1 z2 into lambda 1 minus lambda 2 over c square minus lambda 1 plus c square minus lambda 2 equals to 0. Now this is the condition that tangent planes 5 and 6 should be at right angle. ये हमारी कंडीशन होती है टेंजेंट प्लेन अगर राइट एंगल पे हो. thus the tangent planes at the point of contact of straight lines to the confocals are at right angle. This was required to prove. Next is elliptic coordinates. Now we know if confocal passes through point alpha, beta, gamma, then we can write f lambda as a square minus lambda into b square minus lambda into c square minus lambda minus alpha square b square minus lambda c square minus lambda minus beta square a square minus lambda into c square minus lambda minus gamma square a square minus lambda b square minus lambda equals to 0. This was done by us in article Confocals throw a point, 3 confocals throw a point. हमने जब ये आर्टिकल किया था 3 confocals throw a point, उसमें हमने कॉनिकॉइडी एज्यूम किया था, दैट इज इलिप्सॉइड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू 1. फिर हमने कॉन्फोकल कंसीडर किया था इक्वेशन 1 का, and that was x square over a square minus lambda plus y square over b square minus lambda plus z square over c square minus lambda equals to 1. And if this confocal passes through point alpha, beta, gamma, then alpha, beta, gamma satisfies this equation, that is alpha square over a square minus lambda plus beta square over b square minus lambda plus gamma square over c square minus lambda equals to 1. We have simplified it by taking LCM, and we have assumed this as f lambda. F lambda is this, or we can say f lambda equals to a square minus lambda, b square minus lambda, c square minus lambda minus alpha square a square b square minus lambda, c square minus lambda minus beta square a square minus lambda, c square minus lambda minus gamma square a square minus lambda, b square minus lambda equals to 0. We have denoted this cubic equation by f lambda. This is we have used in the article of elliptic coordinate. ये हमने यहाँ से लिया है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. यहाँ से हमने डायरेक्टली इक्वेशन लिख ली. इक्वेशन ऑफ कॉन्फोकल पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय दिस 3, but you have to derive it. Now this is the equation we have written directly here, but you have to write it completely. Now this is cubic equation and has 3 roots. Say lambda 1, lambda 2, lambda 3 are roots of 1. Therefore, we can write f lambda as minus lambda 1 into lambda minus lambda 2, lambda minus lambda 3. ये रूट्स है तो हम f lambda को लिख सकते हैं इनके फैक्टर्स में. Now dividing equation 1 by a square minus lambda, b square minus lambda, c square minus lambda, इससे डिवाइड कर दिया तो f lambda हमारा क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस बीटा स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस गामा स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस लैम्डा. एक एक फैक्टर यहाँ रह जाएगा, 2 फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे. दैट इज f lambda over a square minus lambda into b square minus lambda into c square minus lambda is 1 minus alpha square over a square minus lambda minus beta square over b square minus lambda minus gamma square over c square minus lambda. Now we have f lambda equals to this, using to substitute this value of f lambda here. Now resolving this into partial fraction.
लेफ्ट हैंड साइड को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे. देन वी हैव दिस. हियर वी हैव डन पार्शियल फ्रैक्शन. हमने यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, दैट इज दिस. इसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव रिटन दिस as a1 over a square minus lambda plus b1 over b square minus lambda plus c1 over c square minus lambda. Now taking LCM on right hand side and cancel out the factor a square minus lambda b square minus lambda c square minus lambda from the denominator. तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा माइनस लैम्डा वन, लैम्डा माइनस लैम्डा टू, लैम्डा माइनस लैम्डा थ्री. और यहाँ पर हमारा ए वन इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, पी वन इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस सी वन इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा. यहाँ हमने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए वन, बी वन एंड सी वन. Put lambda equals to a square. Then on left side we have a square minus lambda 1 into a square minus lambda 2 into a square minus lambda 3 equals to a1 into, this is lambda is a square, a1 into b square minus a square, c square minus a square. जब यहाँ a square put करेंगे we will get 0 because a square minus a square is 0. Again from this we get 0. So from this we can calculate the value of a1 as minus a square minus lambda 1, a square minus lambda 2 into a square minus lambda 3 over b square minus a square, c square minus a square. Here we have substituted lambda equals to a square. Now we will put lambda equals to b square. Then on left side we have minus b square minus lambda 1, b square minus lambda 2, b square minus lambda 3. और यहाँ से जब b square put करेंगे we will get 0 plus b1 into a square minus b square, c square minus b square, this term. Now we can calculate the value of b1 from this. b1 is this. Similarly when we put lambda equals to c square here, जब यहाँ lambda को c square से replace करेंगे तो यहाँ से हमारी c1 की वैल्यू आ जाएगी, because ये दो टर्म जीरो हो जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी in the similar way. Now substituted the value of a1, b1, c1 here. हम यहाँ पर a1, b1, c1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. This, then we have this term equals to a1 and a1 is this value. यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ b1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ हम c1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और ये हमारी किसके इक्वल थी टर्म, दिस टर्म इज इक्वल्स टू, ये टर्म इसके इक्वल थी. इस लेफ्ट साइड को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया और फिर राइट साइड पे इसको कंपेयर कर देंगे. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस बीटा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस गामा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा. यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड आउट कर लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से जो वैल्यू आ रही है हमारी वो ये आ रही है. मीन्स इसकी इसके प्लेस पे हम जो वैल्यू लिख देंगे, ये लेफ्ट साइड की प्लेस पे हम जो वैल्यू लिख देंगे वो हम ये लिख देंगे यहाँ पर a1, b1, c1 सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Then we will compare the coefficients of like terms. Coefficient of like terms here means यहाँ से जो हमारा कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से हमारा कोफिशिएंट जब आप इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे, जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा का कोफिशिएंट हमारा ये हो जाएगा दिस वैल्यू, that is alpha square equals to a square minus lambda 1 into a square minus lambda 2 into a square minus lambda 3 over b square minus a square c square minus a square. 1 by b square minus lambda का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बीटा स्क्वायर हमारा हो जाएगा b square minus lambda 1, b square minus lambda 2, b square minus lambda 3 over c square minus b square into a square minus b square. यहाँ से अगेन हम 1 by c square minus lambda का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. This is the value of alpha square, beta square and gamma square. अगर हमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 पैरामीटर्स पता हो तो हम यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मींस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. द पैरामीटर्स
lambda 1, lambda 2, lambda 3 are called elliptic coordinates of point alpha, beta, gamma with respect to fundamental conicoid. Fundamental conicoid, that is x square by a square plus y square by b square plus z square by c square. इन पैरामीटर्स को हम कहेंगे elliptic coordinates of this point alpha, beta, gamma. Now we have examples. First one is prove that three paraboloids confocal with a given paraboloid passes through a given point of which two are elliptic and one hyperbolic. हमें शो करना है, हमें तीन पैराबोलॉइड मिलेगी जो किसी गिवन पैराबोलॉइड से कन्फोकल होंगे और जो किसी गिवन पॉइंट से पास करेंगे, और जो तीन पैराबोलॉइड मिलेंगे हमें उनमें से दो इलिप्टिक पैराबोलॉइड होंगे और एक हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा. दैट इज किसी गिवन पैराबोलॉइड के कन्फोकल हमें तीन पैराबोलॉइड मिलेंगे जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहे होंगे, और जो तीन पैराबोलॉइड्स मिलेंगे उनमें से दो इलिप्टिक पैराबोलॉइड होंगे और एक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा. Let equation of paraboloid be x square over a square plus y square over b square equals to 2z. हम सपोज कर सकते हैं a greater than b without loss of generality. हमने सपोज कर लिया this. Now this is the paraboloid. Any paraboloid confocal to one is given by x square over a square minus lambda plus y square over b square minus lambda equals to 2z minus lambda. This is the paraboloid confocal to paraboloid 1. If it passes through alpha, beta, gamma, then alpha, beta, gamma will satisfy this, that is alpha square over a square minus lambda plus beta square over b square minus lambda equals to 2 gamma minus lambda. हमने एक पैराबोलॉइड ले लिया, ये हमने पैराबोलॉइड ले लिया जो कॉन्फोकल है पैराबोलॉइड 1 के. अगर ये पैराबोलॉइड हमारा अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है तो अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई करेंगे. We can simplify it, that is alpha square into b square minus lambda plus beta square into a square minus lambda minus 2 gamma into a square minus lambda b square minus lambda plus lambda into a square minus lambda b square minus lambda equals to 0. Let f lambda is this, इसको हमने f lambda से denote कर दिया. Now this is cubic equation in lambda. From this term you can see we will get lambda cube from when we multiply this lambda by this lambda and then again by this. This is cubic equation in lambda and hence it will give us three values of lambda. लैम्डा की तीन वैल्यूज आएगी तो जो हम कॉन्फोकल में ये लैम्डा की वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारा कॉन्फोकल है टू दिस पैराबोलॉइड. अगर यहाँ लैम्डा की हम थ्री वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें तीन पैराबोलॉइड मिलेंगे जो कॉन्फोकल होंगे पैराबोलॉइड 1 से और अल्फा बीटा गामा से पास कर रहे होंगे. अब ये तीन पैराबोलॉइड जो हमें मिलेंगे तीन डिफरेंट वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेंगे. अगर if we put lambda equals to a square then f a square will be alpha square into b square minus a square. यहाँ से हमारी टर्म आएगी, बाकी टर्म्स हमारी जीरो हो जाएगी जब हम a square पुट करेंगे लैम्डा को. अब यहाँ साइन चेक करें, अगर हम एफ ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर से ग्रेटर है बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव आ जाएगी. अगर हम लैम्डा को बी स्क्वायर पुट करें इक्वेशन 3 में तो यहाँ से हमारी टर्म जीरो हो जाएगी. फ्रॉम दिस वी गेट बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से जीरो आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू जीरो आ जाएगी. अब हमने एज्यूम किया है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, दैट इज एफ बी स्क्वायर इज पॉजिटिव. जब हम लैम्डा को लार्ज वैल्यू लेंगे, अगर लैम्डा को हम इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो जो यहाँ वैल्यू आएगी समथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो, दिस इज समथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो माइनस 2 गामा प्लस इन्फिनिटी. अगर हम प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ लैम्डा पॉजिटिव आ जाएगा. अगर हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एफ लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो. अगेन फ्रॉम दिस टर्म वी गेट जीरो समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो.
-2 गामा, यहाँ पर जब हम लैम्डा को पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारी एफ लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। अब हम साइन चेंज देखें, हमारा ए स्क्वायर ग्रेटर था बी स्क्वायर से, और इन्फिनिटी हमारी ए स्क्वायर से भी ग्रेटर है, और माइनस इन्फिनिटी हमारी लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स जो हमारा रिलेशन बनेगा, अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में साइन चेंज हो रहा है एफ लैम्डा का, तो मीन्स एक रूट हमारा लाई करेगा जब हम ए स्क्वायर से बी स्क्वायर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारा माइनस इन्फिनिटी, देखो जो हमारी सीक्वेंस बनेगी रूट की वो हमारी क्या बनेगी, पहले लैम्डा को हमने माइनस इन्फिनिटी पुट किया, फिर हमने ए स्क्वायर, फिर हमने बी स्क्वायर पुट किया, फिर हमने ए स्क्वायर पुट किया, और फिर हमने इन्फिनिटी पुट किया। हमने इन रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी आएगा, फिर बी स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस इन्फिनिटी आएगा। जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद क्या वैल्यू थी हमारी बी स्क्वायर, जब हम बी स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। जब हम माइनस इन्फिनिटी से बी स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, हमने रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि पहले माइनस इन्फिनिटी, फिर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर इन्फिनिटी। मीन्स स्मॉलर से लार्जर वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, देन बी स्क्वायर है, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भी बड़ा है, देन हमारा इन्फिनिटी ए स्क्वायर से भी बड़ी है। तो सबसे पहले हमने सबसे स्मॉल वैल्यू पे चेक किया, माइनस इन्फिनिटी पे चेक किया, तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फिर हमने माइनस इन्फिनिटी से नेक्स्ट टर्म जो ग्रेटर थी वो हमारी बी स्क्वायर थी, बी स्क्वायर पे चेक किया तो रूट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स माइनस इन्फिनिटी और बी स्क्वायर के बीच में हमें एक रूट मिल जाएगा। उसके बाद हमारी जो इंटरवल बनती है वो बनती है बी स्क्वायर से ए स्क्वायर। जब हम बी स्क्वायर से ए स्क्वायर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे रूट का साइन क्या हो रहा है, चेंज, एफ लैम्डा का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव। मीन्स एक रूट हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में। अब हम चेक करें कि ए स्क्वायर और इन्फिनिटी के बीच में, जब हम ए स्क्वायर पे चेक कर रहे हैं तो हमारी एफ लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जब हम इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स एक रूट हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर और इन्फिनिटी के बीच में। एक रूट हमारा कहाँ लाई किया, माइनस इन्फिनिटी और बी स्क्वायर के बीच में। एक रूट हमारा लाई किया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में, और एक रूट हमारा लाई किया ए स्क्वायर और इन्फिनिटी के बीच में। दैट इज वन रूट लाइज बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। यहाँ हमारी बी स्क्वायर है, दिस इज बी स्क्वायर। ये बी टू नहीं है, ये बी स्क्वायर है। एक रूट हमारा लाई करेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में, उसको हमने लैम्डा 2 से भी नोट किया। एक रूट हमारा बी स्क्वायर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा था, उसको हमने लैम्डा 3, मीन्स बी स्क्वायर से स्मॉलर एक रूट आएगा। और एक रूट हमारा ए स्क्वायर और प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा था, इट मीन्स एक रूट हमारा ए स्क्वायर से बड़ा आएगा। तीन रूट्स हमारे पास आ गए। जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 ली हमने, तो जो हमारा इक्वेशन 2 में हमने पुट किया, इक्वेशन 2 इज दिस, जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 ली तो ये हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2z माइनस लैम्डा 1। और लैम्डा 1 हमारा क्या था, ए स्क्वायर से ग्रेटर था। जब यहाँ ए स्क्वायर से ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी हमारी जो ए स्क्वायर से ग्रेट बी स्क्वायर से भी ग्रेटर है लैम्डा। जब हमने लैम्डा 1 पुट किया यहाँ पर, तो जो हमारा लैम्डा 1 रूट है वो ए स्क्वायर से भी बड़ा है, बी स्क्वायर से भी बड़ा है। तब जब जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस समथिंग लैम्डा लार्जर देन ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर से लार्जर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर से नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, सेम साइन का आ गया। तो ये हमारा जो
पैराबोलॉइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्टिक पैराबोलॉइड को। अगर लैम्डा को लैम्डा 3 पुट करें, मीन्स ये वैल्यू पुट करें, मीन्स ए स्क्वायर से भी छोटी वैल्यू, बी स्क्वायर से भी छोटी वैल्यू। जब यहाँ पर ए स्क्वायर से भी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो यह वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पर भी हमने बी स्क्वायर से स्मॉल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो यहाँ वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मीन्स अगेन वी हैव सेम साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन सेम हो जाएगा। फिर हमने लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 2 सब्स्टिट्यूट की, दैट इज लाई बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 2। ए स्क्वायर बड़ा है लैम्डा 2 से तो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पुट करेंगे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा 2। लैम्डा 2 बड़ा है बी स्क्वायर से तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है। उस केस में जो हमारा पैराबोलॉइड है कॉन्फोकल पैराबोलॉइड वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड को। बिकॉज वी नो इक्वेशन ऑफ इलिप्टिक पैराबोलॉइड इज दिस, जहां पर सेम साइन रहते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड में हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साइन डिफरेंट रहते हैं। मीन्स हमारे को यहाँ पर 3 कॉन्फोकल मिले पैराबोलॉइड के जो किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं गिवन पॉइंट से। उन कॉन्फोकल में से 2 कॉन्फोकल हमारे इलिप्टिक पैराबोलॉइड है और एक कॉन्फोकल हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। नेक्स्ट एग्जांपल, prove that the equation to the confocal through the point of focal ellipse whose eccentric angle alpha is this। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कॉन्फोकल की, किसी पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ द फोकल एलिप्स। हमें इसेंट्रिक एंगल गिवन है, हमें इक्वेशन कॉन्फोकल की ये फाइंड आउट करनी है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है एंड द पॉइंट ऑफ फोकल एलिप्स is the one through which the confocal passes and we have eccentric angle alpha. Now let equation of confocal be x square over a square minus lambda plus y square over b square minus lambda plus z square over c square minus lambda equals to 1। हमने confocal की इक्वेशन ये एज्यूम कर ली। इसका हम सेक्शन फाइंड आउट करें बाय प्लेन z equals to 0 तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पर हम ये हमारी इलिप्स में रिड्यूस हो गया, अगर यहाँ पर लैम्डा को हम सी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें तो जो हमारी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड z इज 0। बिकॉज हमने सेक्शन, हमारे पास एक इलिप्सॉइड था उसको हमने प्लेन z इक्वल्स टू 0 से मीट करवा के सेक्शन फाइंड आउट किया और वो सेक्शन हमारा क्या आ गया, इलिप्स आ गया। अब कोई भी पॉइंट इस इलिप्स पे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिक एंगल, हमारा ये पॉइंट इस इलिप्स पे लाई करेगा। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, जेड इज 0। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड विच इज इक्वल्स टू 1। So left hand side equals to right side. This is the point of the focal ellipse where alpha is eccentric angle. If one passes through, if this confocal passes through point this, then ये points satisfy करेगी। एक्स को रिप्लेस कर देंगे रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस अल्फा से, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस जेड की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। वी हैव ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको प्रोडक्ट कर देंगे। वी हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लैम्डा माइनस बी स्क्वायर लैम्डा, ये टर्म आ गई हमारी लैम्डा के कोफिशिएंट। यहाँ से लैम्डा के कोफिशिएंट हम देखें तो हमारे लैम्डा के कोफिशिएंट क्या आएंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से लैम्डा के कोफिशिएंट हमारे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स है यहाँ से हमारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ से आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से जो हमारी टर्म आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ से लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट सेपरेट कर लिए, लैम्डा के कोफिशिएंट सेपरेट कर लिए और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर लिया। दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से हमारी जो टर्म आएगी माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेके हमारा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट इज 1। तो यहाँ सिर्फ माइनस सी स्क्वायर रह जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हमारी जो टर्म्स रह जाएगी दैट इज, इन दोनों टर्म को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या रह गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड वी नो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1। तो यहाँ से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा रह गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। यहाँ पर ए स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन करें हम, यहाँ से यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड वी नो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड वी नो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और ये टर्म हमारी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वी गेट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ से हमारी टर्म आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर इंटू दिस टर्म एज इट इज। इसको अब हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज कर लिया। यहाँ से लैम्डा कॉमन करके लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये टर्म हमारी कॉमन आ रही है, ये टर्म कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो रह जाएगा दैट इज सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दो फैक्टर सेम बन जाएंगे, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ से एक फैक्टर हमारा आ गया लैम्डा माइनस सी स्क्वायर और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा आ गया लैम्डा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से लैम्डा की एक वैल्यू सी स्क्वायर आ गई और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अगर लैम्डा को सी स्क्वायर पुट करेंगे हम फर्स्ट में तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, अगर यहाँ पर हम लैम्डा को सी स्क्वायर पुट करेंगे तो जो हमारा कॉन्फोकल आएगा वो यही आ जाएगा, यही था जिसने लैम्डा को सी स्क्वायर पुट किया है। अगर लैम्डा को जो हमारी सेकंड वैल्यू आई है क्वाड्रेटिक की वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, देन वी हैव ये वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इज दिस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा इज दिस। नाउ simplifying, this is the equation of required confocal
that is x square over a square minus b square cos square alpha minus y square over minus b square plus a square sin square alpha plus z square over c square minus a square sin square alpha minus b square cos square alpha equals to 1. Next example. Show that the two confocal paraboloids cut everywhere at right angle. हमें शो करना है दो confocal paraboloids हमेशा राइट एंगल पे ही कट करेगी. Let the equation of two confocal paraboloids be x square over a square minus lambda 1 plus y square over b square minus lambda 1 equals to 2z minus lambda 1 and x square over a square minus lambda 2 plus y square over b square minus lambda 2 equals to 2z minus lambda 2. Let 1 and 2 be two confocal paraboloids. हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और शो करना है कि ये राइट एंगल पे कट करते हैं. Let x1 y1 z1 be the common point of two confocal paraboloids. हमने एक कॉमन पॉइंट ले लिया जो इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है, तो इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2z1 माइनस लैम्डा 1 and x1 square over a square minus lambda 2 plus y1 square over b square minus lambda 2 equals to 2z1 minus lambda 2. Now subtracting equation 4 from 3 we have x1 square over 1 by a square minus lambda 1 minus 1 by a square minus lambda 2 plus y1 square into 1 by b square minus lambda 1 minus 1 by b square minus lambda 2 equals to 2z1 से 2z1 cancel, we have lambda 2 minus lambda 1. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. दैट इज x1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू a स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू b स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. इसको सिंप्लीफाई किया जस्ट. यहाँ से ये फैक्टर हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया बिकॉज लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो डिफरेंट पैरामीटर्स हमने लिए हैं, दो डिफरेंट कॉन्फोकल्स लिए हैं. तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आई दैट इज x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू a स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू b स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस 1. नाउ we can write the equation of tangent plane at this point two confocal 1 and 2. हमारे पास दो confocals हैं, हमने x1 z1 y1 उनका कॉमन पॉइंट लिया है. हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट पर कॉन्फोकल 1 की, और वो हमारी क्या आएगी x x1 ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 प्लस y y1 ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू z प्लस z1 माइनस लैम्डा 1. सिमिलरली हमारा जो कॉन्फोकल 2 है दैट इज दिस, इस पे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट x1 y1 z1. तो हमारी जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी दैट इज x x1 ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 प्लस y y1 ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू z प्लस z1 माइनस लैम्डा 2. अगर टेंजेंट प्लेन्स राइट एंगल पे होंगे तो हमारी कंडीशन क्या होती है x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू a स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू b स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो हमारी कंडीशन क्या रहती है. अगर हमारे पास दो प्लेन है L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1, L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2. अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा 0. डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज का. यहाँ से x का कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा x1 ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 1, और यहाँ से x का कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा x1 ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 मीन्स Lx. यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे my, दिस इज m, हियर इट इज m. यहाँ से हमारा जो z का कोफिशिएंट आएगा nz 1 ही आएगा, यहाँ से z का कोफिशिएंट 1 ही आएगा.
इसको कंपेयर कर रहे हैं हम L1x, M1y, N1z, इसको लेफ्ट में ले आए माइनस z हो जाएगा, इसको राइट में रहने दो P1। यहाँ पर इसको कंपेयर करा L2x, M2y, N2z, N2 की वैल्यू इसको जब लेफ्ट में ले आएंगे -1 हो जाएगी, क्योंकि z का कोफिशिएंट जब लेफ्ट में आएगा -1 हो जाएगा, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। ये दोनों प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट इज L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू जीरो। L1 L2 हमारा क्या आएगा, x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस लैम्डा वन इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा टू प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस लैम्डा वन इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा टू। यहाँ से जो हमारा कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से z का कोफिशिएंट -1 आएगा, तो -1 इंटू -1 इज +1। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारी कंडीशन होगी अगर ये दोनों टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर है, और ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन 5 इज आल्सो दिस। तो जो हमारे ये कॉन्फोकल्स है वो क्या है, जब भी इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। हमें शो करना था कॉन्फोकल पैराबोलॉइड्स कट एवरीवेयर एट राइट एंगल। हमारे पास दो कॉन्फोकल पैराबोलॉइड्स थे, हमने उनको दिखाना था कि वो कट करते हैं राइट एंगल पे। हमने उनका कॉमन पॉइंट ले लिया x1 y1 z1 जहां पर वो कट करते हैं। अगर दो कॉन्फोकल पैराबोलॉइड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो उनके जो टेंजेंट प्लेन है वो भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। उनके हमने टेंजेंट प्लेन ले लिए, ये हमने टेंजेंट प्लेन ले लिए। अगर हमारे कॉन्फोकल राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो उनके जो टेंजेंट प्लेन है वो भी परपेंडिकुलर होंगे, और ये हमारे टेंजेंट प्लेन है और ये हमारी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। मींस अगर दो कॉन्फोकल को परपेंडिकुलर होना है, मींस दो टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर होना है, तो ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ से हमारी जो हमने ये वर्किंग की, यहाँ से हमारी ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मींस दो कॉन्फोकल परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो टेंजेंट प्लेन हमें पता है कॉन्फोकल परपेंडिकुलर है तो उनके टेंजेंट प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे, और टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन जरूर होल्ड करनी चाहिए, और ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है यहाँ से। इट मीन्स जो दो कॉन्फोकल पैराबोलॉइड है वो हमारे राइट एंगल पे ही कट कर रहे हैं। Hello students, here is some practice questions for you on the topic confocal conicoids. First question is, prove that the tangent planes to two confocal conicoids at any common points are at right angles. Second question is, show that locus of the point of intersection of three planes mutually at right angles, each of which touches one of three confocals is a sphere. Third question is, prove that the equation to the confocal which has a system of circular sections parallel to plane x equals to y is x square over c square minus a square into a square minus b square plus y square over b square minus c square into a square minus b square plus z square over 2 b square minus c square into c square minus a square equals to 1 by 2 c square minus a square minus b square. Fourth question is, the difference of the squares of the perpendicular from the center on any two parallel tangent planes to two given confocal conicoids is constant. Here is hint for you.